on this PPT program. Today I am going to discuss the role of the government in health, chapter number 23 from civics. So let's the chapter. Main highlights of this chapter are healthcare in India, private health facilities means हम जब प्राइवेट हेल्थ केयर को जाएंगे उस वहाँ से क्या फैसिलिटी हमको मिल रहा है. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. हेल्थ केयर में लोगों का हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, किस टाइप का सब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दिया जा रहा है. मतलब मीन्स गवर्नमेंट कैसे ऑर्डरली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. देन हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, हेल्थ केयर में कैसे इक्वालिटी ला रहे हैं. मीन्स कोई गरीब कोई अमीर, रिच पर्सन और पुअर पर्सन, सभी को कैसे समान तरह गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहा है. दैट ऑल we learn from this chapter. In a democracy, the function of the government is to look after the welfare of the people. This could be through the provision of health, education, employment, housing, or the development of roads, providing clean drinking water, electricity, etc. Generally, health means the ability of people to remain free of illness, diseases, and injuries. But the word health conveys a more positive concept than mere absence of disease. We are healthy if we are active and in good spirits in whatever we may do. It is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All these aspects are a part of health. There are other factors also that affect our health. For example, people require a pollution-free environment and clean drinking water to remain healthy. On the other hand, if people do not get adequate food or sleep, it will lead to illness. Those who are poor are in the first place to be undernourished. These families do not eat as much as they should. They are not provided basic necessities like clean surroundings, balanced diet, having all the elements required by the body, clean drinking water, adequate housing, etc. Therefore, they are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. Moreover, women generally are not taken to a doctor in a prompt manner. Many rural areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. Healthcare is based on health education. Health education is a part of education, but not all its aspects are taught in a proper way. That is why people are not aware about the concept of balanced diet, body hygiene, safe or clean drinking water, clean environment, etc. Means हमारा गवर्नमेंट जो कंट्री को चला रहा है, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा गवर्नमेंट का पहला काम है पीपुल का वेलफेयर करना. मतलब पीपुल कैसे हमारा कंट्री के अंदर में जो पीपुल रहे, जो सिटीजन्स है, उनको कैसे खुशहाली में रखेगा. हर तरह का खुशहाली कैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा हमारा सिटीजन्स को, हमारा पीपुल्स को. दैट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ गवर्नमेंट. दिस कुड बी द कोई कैसे वेलफेयर देगा ना, इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग or the development of roads, providing clean water, electricity, etc.
इस तरह से पीपल वेलफेयर वर्क गवर्नमेंट करेगा, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। जनरली हेल्थ मीन्स क्या है? हेल्थ मीन्स क्या है? यहाँ पर बुक में लिखा गया है, हेल्थ मीन्स द एबिलिटी ऑफ पीपल टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, डिजीजेस एंड इंजुरीज। दैट मीन्स ये हेल्थ एक ताकत है जिससे पीपल अपने आप को इलनेस, डिजीजेस एंड इंजुरीज से दूर रखेगा। दैट इज हेल्थ। अदर वर्ड में हम हेल्थ को बोल सकते हैं जो आदमी डूल नहीं है, स्कैरेड नहीं है एंड उसका ब्रेन स्ट्रेन मतलब उसका वो धीरा नहीं है, वो अपने आप उसका ब्रेन हर तरह का खुशहाली में रहता है, उस आदमी को भी हम हेल्दी आदमी बोल सकते हैं। हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं? अगर हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर न्यूट्रलाइज्ड फूड अगर हमको मिलेगा, हमको अगर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन इज वेरी पुअर। सो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनका हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे, मतलब मीन्स दे आर नॉट हेल्दी। व्हाई दे आर नॉट हेल्दी? बिकॉज दे हैव नो सफिशिएंट मनी फॉर nourishing in their food, in their housing, in their water drinking process. For that they are taking undernourished foods. वो जो पुअर पीपल है वो उनका फैमिली को उतना नॉरिश्ड फूड नहीं दे रहे हैं। वो जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो क्लीन वाटर नहीं है। वो जहाँ पर रह रहे हैं वो उनका जो हाउस है वो भी इतना क्लीन एंड एडुकेट हाउस नहीं है, इसीलिए वो सब हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। ऑल्सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर वुमेन प्रॉपर ट्रीटमेंट। दैट्स वाई दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी। जितना भी सिचुएशन आ रहा है सबसे वर्स्ट सिचुएशन है अगर आप इलनेस में पड़ोगे एंड डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन हमारा रूरल एरिया में इतना सफिशिएंट हेल्थ सेंटर्स भी नहीं है एंड ऑल्सो प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी, हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर रूरल एरिया में नहीं मिल रहा है। अगर पुअर पीपल गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट ना होकर प्राइवेट हॉस्पिटल को जाएगा और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जाएगा। इसीलिए पुअर पीपल्स कैन नॉट प्रोवाइड द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। नाउ वी लर्न health care in India. In India, it is often said that the government is unable to provide health services for all because it does not have enough money and facilities. But the government has a wide network of health centers, hospitals, blood banks, laboratories for testing, ambulance services, etc. India has the largest number of medical colleges in the world and also has a large number of doctors, clinics and hospitals. Approximately 15,000 new doctors qualify every year from these colleges. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. From many countries, people come for treatment in some of the hospitals in India that are compared with the best in the world and are cheaper. India is the 4th largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. But about
5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. The reason behind the situation is that in the first case, most of the doctors settle in urban areas to earn and prosper. They do not like to go to the villages for the lack of facilities like clean drinking water, regular supply of electricity, clean environment, etc., which is the reason for people falling upon ill too. The rural people cannot pay more to the doctors. The medicines are too expensive. All the medicines could not be sold in India. They are exported for more profits. Only few hospitals are compared with the best in the world, but the rest, especially the government hospitals, are not managed well because they have to deal with a large number of poor patients seeking free services and free medicines. मीन्स हम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज. हमारा गवर्नमेंट हमारा सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अनेबल है. क्या है रीजन, क्या है? क्योंकि सब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट मनी, बट दैट इज 100% रॉन्ग. क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्सपेंस कर रहा है फॉर हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, एटसेट्रा. इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं. जितना मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड में है, सभी कंट्री से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारा इंडिया में है. इतना मेडिकल कॉलेजेस एंड इतना मेडिकल फैसिलिटीज है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है, जो कि वर्ल्ड का बहुत सारे कंट्री से हमारा देश को वो पीपुल्स आ रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, उनका डिजीज क्योर करने के लिए. वर्ल्ड का अदर कंट्री से हमारा कंट्री को वो अपने डिजीज को क्योर करने के लिए क्यों आ रहे हैं? आप सोचिए क्यों आ रहे हैं. बिकॉज दे आर फाउंडिंग मोर फैसिलिटीज इन इंडिया रादर देन अदर कंट्रीज. फैसिलिटीज मीन्स caring facilities, also monetary facilities. Means our country health service is mostly cheaper than other countries' health service. Also, India is the fourth largest producer of medicines and also exporter. The most of the production of medicines are export to other countries. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो इतना सारे मेडिकल फैसिलिटीज है, बाहर कंट्री से पीपल हमारा कंट्री को डिजीज क्लियर करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्री में इतना सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? ये देखा गया है कि लगभग एवरी ईयर 5 लाख पीपल आर डाइंग इन ट्यूबरकुलोसिस एंड 20 lakhs peoples are dying in malaria. So why they are dying? इतने सारे डॉक्टर्स हैं हमारा कंट्री में, जो कि वर्ल्ड में जितना हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, वर्ल्ड का एवरी कंट्री में जितना मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा कंट्री में है. बट रादर देन व्हाई so many peoples are dying in generally tuberculosis and malaria? Main reason is many doctors are in our country, but they have no wish to go rural areas. So why they have not wish to go rural area? Because they are not founding facilities. They are not founding more facilities
in rural area as like as urban. अर्बन एरिया में डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स रहने के लिए इच्छुक हैं. दे हैव विश टू स्टे इन अर्बन एरिया बट नॉट इन रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में उनको इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ऑल्सो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रहा है. एंड गांव में उनका बच्चों का पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल्स भी, अच्छा प्राइवेट स्कूल्स भी नहीं होता है. वो सब फैसिलिटी ना होने के कारण हमारा जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरिया में आने के लिए दे हैव नो विश. दैट्स द मेन रीजन दैट आवर कंट्रीज most of the people are undernourished and they are falling in many diseases and they are not curing themselves, so that they are dying in a large number. So now we learn public health services. गवर्नमेंट कैसे अपने आप की तरफ से हेल्थ सर्विसेज सभी सिटीजन्स को दे रहा है. So public health services are meant for all people in the country and are mainly organized by the government, almost free or in some cases at low cost. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government, central, state or local. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, ranging from common illness to special diseases. Public healthcare services form the backbone of health care in India. These hospitals provide healthcare facilities such as diagnosis and treatment of diseases, conducting essential tests and providing medicines. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness. A primary health center covers many villages in a rural area. Its doctors also supervise the work of the village health workers. At the district level, there is one district hospital. It also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals in which few are specialized hospitals. In rural areas, a GP is often used to serve as a mobile clinic for patients. Public health system provides quality health care services either free or at a low cost, so that even the poor can get treatment. Another very essential and important function of public health system is to take action to prevent the spread of diseases such as tuberculosis, polio, malaria, jaundice, dengue, cholera, chikungunya, etc. For example, Pulse Polio campaign by the government on certain Sundays is known as Polio Day. On these Sundays, all the children below the age of 5 years are given polio drops orally free of cost by the health workers all over the country. Prejudice prevents some people to let their children get polio drops. Without the participation of people, the government campaign for health could not be effective. To prevent malaria and dengue, health workers go door to door to inspire people to see that mosquitoes do not breed in drains, water coolers, rooftops, etc. Many people are following the instructions, but some are careless despite of the efforts of the health workers. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established hospitals and health centers. The money spent on health services comes from us, the public, or as taxes paid to the government. For example, every time we purchase a commodity, a certain percentage is charged as government tax. The government must safeguard the right of life of every person. If the medical staff of a hospital refuses or does not provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. If a person is denied treatment at a government hospital, she or he can file a case in the court for justice, and the court will ask the state government to pay him or her the money spent on treatment in private hospitals. Means the main source of public health care
or going to giving to cureness to our people is public health service. Public health service means a government organized in our country, many hospitals. That is गवर्नमेंट जो हेल्थ सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और समटाइम few cost are taken by, very low cost are taken from peoples. ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो एक चेन है. उस चेन में कौन कौन पार्ट ले रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट ले रहा है, और लोकल गवर्नमेंट भी पार्ट ले रहा है. ये जो हेल्थ चेन है, इस चेन में हमारा गवर्नमेंट रूरल में भी ट्रीटमेंट दे रहा है एंड अर्बन में भी ट्रीटमेंट दे रहा है. ये हेल्थ सर्विसेज में क्या सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में, पब्लिक हेल्थ सेंटर में क्या सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा अगर एक आदमी इलनेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का गया तो उसका हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसका पहले डायग्नोसिस होगा, क्या डिजीज उसको हुआ है. उसका डायग्नोसिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, फिर उसका डिजीज के लिए ट्रीटमेंट हो रहा है. देन उसका डिजीज के लिए क्या क्या मेडिसिन चाहिए, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है. हमारा जो हेल्थ सर्विस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज village level health center, another is primary health center, and last one is district health center, district hospital. तो विलेज लेवल जो है, एवरी विलेज में एक हेल्थ सेंटर है. एवरी विलेज ऑफ ए ब्लॉक, एक ब्लॉक का जितना विलेजेस है वो सब विलेजेस में एक एक हेल्थ सेंटर है. उस हेल्थ सेंटर में क्या कौन आदमी, क्या कौन पर्सन काम कर रहे हैं? वन नर्स and another one village health worker. उसके बाद उस ब्लॉक में एक हेड हॉस्पिटल है, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर. वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या कर रहा है ना, उसके अंडर में जितना विलेजेस आ रहा है, उसका अंडर में जितना हेल्थ सेंटर्स, विलेज वाइज हेल्थ सेंटर आ रहा है, वो उसको गाइड कर रहा है. और वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर रहते हैं वो सुपरवाइज करते हैं विलेज वाइज हेल्थ सेंटर का. नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स क्या क्या काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज कर रहा है. उसके बाद वो जो ब्लॉक्स सब जो डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है. वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने सारे ब्लॉक्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको सुपरवाइज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल. बड़े बड़े शहर में, बिग सिटीज में मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर एंड दे आल्सो treat that urban areas people. Another one, most of the quality health services of public health service is they are taking action for prevent of spreading diseases. डिजीज कैसे स्प्रेड नहीं होगा, वो एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. अगर कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होगा तो कोई भी पीपल डिजीज में नहीं पड़ेंगे. तो गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के जरिए बहुत सारे डिजीज को स्प्रेडिंग होने से बचाता है. जस्ट लाइक चिकनगुनिया, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू, कोलेरा एटसेट्रा. इसके लिए आप सब देख रहे होंगे पोलियो डे हो रहा है.
कुछ संडे में अनाउंस किया जाता है कि इस दिन में पोलियो का टीका दिया जाएगा। सो आप सब हेल्थ सेंटर को आएंगे एंड पोलियो ड्रॉप्स फ्री में मिलता है। पोलियो ड्रॉप्स लेने से आपको आगे में जाकर पोलियो नहीं होगा, जिससे कि आप पोलियो डिजीज में नहीं पड़ेंगे। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम एनी डिजीज बाय गवर्नमेंट। और दूसरा क्या काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट वाइज, जो विलेज वाइज हेल्थ सेंटर से, विलेज वाइज हेल्थ सेंटर्स का वर्कर जाकर गांव-गांव में घूमकर वो आपको हमें सब पीपुल को समझा रहे हैं। दे आर इंस्पायरिंग द पीपुल्स टू हाउ द मॉस्किटोज फॉर प्रिवेंटिंग मलेरिया। They are teaching, they are giving the lessons to people that how the mosquitoes are not breeding. वो कैसे मॉस्किटोज ब्रीडिंग नहीं करेंगे उसके बारे में सब सिटीजन्स को गांव-गांव घूमकर पब्लिक हेल्थ विलेज वाइज हेल्थ सेंटर से जो वर्कर है वो समझा रहे हैं। आपका रूफटॉप से, ड्रेन से, फिर आपका कूलर से कैसे वाटर स्टॉक नहीं होगा एंड वहाँ से मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होंगे। अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होंगे तो मलेरिया डिजीज नहीं होगा और उससे जितना आदमी मर रहे हैं 20 लाख पर ईयर जो आदमी मर रहे हैं फॉर मलेरिया, वो नहीं होगा। वो जो बात समझा रहे हैं, बहुत सारे आदमी उसको मान रहे हैं एंड कुछ आदमी उसको ओबे नहीं कर रहे हैं। सो ओबे ना करने से मॉस्किटोज ब्रीडिंग होता है एंड मलेरिया में वी आर फॉलिंग इन मलेरिया। तो ये से इतने सारे जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो इतने सारे पैसा खर्च कर रहा है गवर्नमेंट, वो कहाँ से ला रहा है? वो हमसे ही ला रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी चीज आप परचेज कर रहे हैं वहां से हमको एक टैक्स हम देना पड़ता है। वो टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। उसी टैक्स में जो अमाउंट कलेक्शन, मनी अमाउंट जो कलेक्शन होता है, उसी अमाउंट से गवर्नमेंट हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विस में जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे कर रहा है। तो दैट इज द राइट ऑफ आवर्स। ओके, सो एक जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाएंगे, अगर कोई डॉक्टर, नर्स और एनी हेल्थ वर्कर अगर हमको मना कर रहा है कि हमको वो ट्रीटमेंट नहीं देगा, तो हम उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ये गया पब्लिक हेल्थ सर्विस, मीन्स गवर्नमेंट कैसे हमको हेल्थ सर्विस दे रहा है। उसके बाद भी इतना काम करने के बाद भी गवर्नमेंट का जो मेडिकल से, हॉस्पिटल से, वहाँ से अच्छे से हमको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वो सब पैसा के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट में जो रूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो भी जाएगा अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, वो फ्री में ही करेंगे। सो वो फ्री में करने के लिए वो राजी नहीं है, इसीलिए वो हमें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं एंड जो कुछ भी फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे आदमी अपने ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर को जा रहे हैं। तो प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या सब फैसिलिटीज है हम अभी लर्न करेंगे। Urban areas have large number of doctors that run their own private clinics. Many of them provide specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also medical shops from where one can buy medicines. Now there are large companies that run hospitals to earn profits.
Some companies manufacture and sell medicines for profit. Private health facilities are not owned or controlled by the government. In private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. Thus, private doctors and hospitals are more expensive. Only the rich can afford them, but they give all facilities, quick attention, and care for the money spent. In rural areas, one finds only one registered medical practitioners. They can treat only common illness. Often the villagers have to go to cities for specialized services. मीन्स प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में मेनली अर्बन एरियाज में अवेलेबल होता है. उसको कौन चला रहे हैं? ना बड़े बड़े डॉक्टर्स उनका अपना क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम बनाकर वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हमको दे रहे हैं. दैट इज मोस्टली एक्सपेंसिव. वो सब क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? अगर हम कुछ डिजीज में पड़कर जाएंगे तो वो हमको लैबोरेटरीज में टेस्ट कराएंगे. उनका लैबोरेटरी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड मेनी फैसिलिटीज दे आर गिविंग इन दिस लैबोरेटरी. वो लैबोरेटरी में हमारा टेस्ट करेंगे. टेस्ट करने के बाद वो हमको मेडिसिन लिखेंगे. वो जो मेडिसिन लिखेंगे वो मेडिसिन भी उनका हॉस्पिटल का कैंपस में भी मिलता है. कुछ समय देखा गया है उनका ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइवेट हेल्थ सर्विस, हेल्थ जो नर्सिंग होम है, जो हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है एंड जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, उनका ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अननेसेसरीली वो मेनी टाइप ऑफ टेस्ट करने के लिए हमको बोल रहे हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. अननेसेसरी मेडिसिन लिख रहे हैं जिससे कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाएंगे. वो बहाने जो कि एक जनरल पुअर पीपुल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. ओनली रिच पर्सन्स कैन अफोर्ड दैट अमाउंट. बट एक फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है. क्या फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है? अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे, आपका केयरिंग ठीक से नहीं लेंगे, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन लूज एक्सपेक्टेशन हो देंगे. लेकिन अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर में जाएंगे वो ज़्यादा तो मनी लेंगे, उसके साथ साथ वो हर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल को जाता है उसका पहले बहुत सारे केयरिंग लिया जाता है. जैसे कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, जैसे कि वो पेशेंट किसी तरह का प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा एंड उसको क्विक और उसका डिजीज से उसका कैसे क्विक रिलीज मिलेगा वो उसको पहले देखा जा रहा है. इसीलिए हमारे यहाँ प्राइवेट hospitals and nursing home are most better than public or government hospitals. Now we learn health care and equality. हेल्थ केयर में कैसे इक्वालिटी रह रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. दीज प्राइवेट सर्विसेज आर अवेलेबल इन अर्बन एरियाज. As the services are run for profit, the cost of these services is rather high. Even then, both urban and rural people prefer to pay and seek the high quality services provided by private doctors than using free treatment of public health centers. There are many reasons for this, such as better medical attention and cleaner environment. Even those who are poor go to private clinics and hospitals in the hope of better treatment and faster recovery. Often they have to borrow money or even sell their belongings to bear the medical expenses. Taking advantage of the situation, some private health service providers prescribe unnecessary test medicines, injection or saline glucose bottles when tablets or simple medicines can sufficient. This they do
to earn more and more money. The problem gets complex as poor people usually suffer from hunger and malnutrition. They tend to fall sick repeatedly. Poor sanitation facilities, pollution and unsafe drinking water make the situation worse. Thus, adequate health care is not available to all citizens in India. मीन्स इतने सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देने के बाद भी आज का पुअर पीपुल हो या रिच पीपुल सभी प्रिफर कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को एंड क्लिनिक्स को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स, नर्स एंड हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनके लिए, वो पीपल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो काम करे या ना करे उनको जितना सैलरी मिल रहा है मिलेगा, इसीलिए वो तो हम तो देख रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट गया वो वहाँ पर उसको जितना भी तकलीफ हो वो सुनेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं। इसीलिए आज का डेट में पुअर पीपल हो और रिच पीपल हो वो सब प्रीफर कर रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स। क्योंकि ये होप में कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो उनको क्विक रिलीज मिलेगा उनका डिजीज से। और एक रीजन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। सभी तरह से जहाँ भी जाओगे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वहाँ से बैड स्मेल निकल रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब अगर जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल को जाएंगे वहाँ पर एवरीवेयर क्लीन एंड गुड स्मेल्स आर कमिंग। सो क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स है वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्स काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वहाँ उनका जो रिटेन मैनुअल है, रिटेन मैनुअल के अनुसार ही वो काम करेंगे। सभी तरह का एनवायरनमेंट क्लीन एंड दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ पेशेंट्स, सो दैट आज का डेट में पुअर पीपल भी अपना सब जो कुछ भी उसके पास है उसको बेच कर, सेल करके, वो बोरोइंग, और कुछ नहीं है तो वो बोरोइंग करके, मतलब धार लेके, बोरोइंग मनी बोरोइंग फ्रॉम banks and go for treatment to public health services or public sector medical। इसीलिए क्या हो रहा है, पुअर पीपल का सिचुएशन और वर्स्ट से वर्स्ट हो जा रहा है। इसको देखकर ज्यादा कमाने के चक्कर में पब्लिक जो हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से एंड क्लिनिक से वो क्या कर रहे हैं, जो मेडिसिन आपको चाहिए नहीं, एक छोटा सा मेडिसिन से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो मेनी इंजेक्शंस, सलाइंस एंड मेनी थिंग्स लिख रहे हैं। क्योंकि उनका कैंपस में मेडिसिन स्टोर है, आप ज़्यादा मेडिसिन लाएंगे तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो आपका जो टेस्ट आपका जरूरी नहीं है वो टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि उनका कैंपस में वो सब टेस्ट का इंतजाम है। आप वहाँ पर टेस्ट कराएंगे एंड ज़्यादा मनी एक्सपेंस करेंगे और उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इससे क्या होता है ना, रिच पर्सन का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पुअर पर्सन, जो पुअर पीपल है, वो उनका हेल्थ, उनका जो वेल्थ है, हेल्थ तो डिक्रीज कर रहा है, हेल्थ तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसका वेल्थ ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज कर जा रहा है। इससे क्या होता है, पुअर पीपल एंड रिच पीपल के अंदर में जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। वो जो ट्रीटमेंट, पुअर पीपल जो ट्रीटमेंट होकर आने के बाद उनके पास कुछ भी मनी और बचता नहीं कि अपना न्यूट्रलाइज्ड फूड खाएंगे और उनका जो एनवायरनमेंट पे उसको पॉल्यूशन से दूर रखेंगे। वो पैसा नहीं होता है तो उनका घर में वो अपने ठीक से सैनिटाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं एंड पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं।
जैसे कि उनका तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहा है एंड इक्वालिटी नहीं रह रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत बिगड़ने से पुअर एंड रिच पर्सन का जो वर्थ, जो वेल्थ इक्वालिटी रहना चाहिए, वो इक्वालिटी नहीं रह रहा है। पुअर पीपुल पुअर से वर्स्ट पुअर हो रहे हैं, उनका वो वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कुछ ध्यान देगा तो वो पुअर पीपुल इतना प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाएंगे एंड अपने आप को फ्री ट्रीटमेंट में उनका हेल्थ को ओके रख पाएंगे। उसके साथ साथ उनको जो वेल्थ है वो भी ठीक रहेगा। वेल्थ ठीक रहने से वो अपना घर को सैनिटाइज कर पाएंगे, उनका एनवायरनमेंट को क्लीन कर पाएंगे एंड वो जो फूड लेंगे वो न्यूट्रलाइज्ड फूड लेंगे। So now we learn what is the responsibilities of the government. No doubt, it is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much as dependent on basic amenities, balanced diet, clean drinking water, clean environment, and good economic conditions of the people as it is on healthcare service. Prevention is better than cure. Basic amenities will help prevent the illness and diseases. So the government must work on both prevention and cure to improve the health conditions of all the citizens. In 1996, the government of Kerala state in India gave 40% of the entire state budget to the panchayats to provide for the basic amenities, food, water, education and women's development. Health centers were also improved. Their effort is going on and the shortage of doctors, medicines and hospital beds is being dealt with. The government of Costa Rica, a country in South America, decided not to have an army. It spent the money which was earlier used on army on health, education and other basic needs of the people: nutrition, safe drinking water, sanitation, housing and hospitals. Costa Rica is now considered to be one of the healthiest country in South America. तो इसमें हम लर्न करते हैं व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पुअर पर्सन का, पुअर पीपुल्स का जो वेल्थ वर्स्ट से वर्स्ट हो रहा है, उसमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे क्वालिटी सर्विसेज पीपुल के पास, सिटीजन्स के पास पहुंचेगा, उसके ऊपर नजर रखना गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हेल्थ, एक पीपुल कैसे हेल्दी रहेगा, अगर वो पीपुल को बैलेंस डाइट मिलेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा एंड उसका हाउस अगर सैनिटाइज, प्रॉपर सैनिटाइज रहेगा तो वो आदमी, कोई भी आदमी डिजीज में नहीं पड़ेंगे, इल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट ड्यूटी है कि कैसे हर disadvantaged persons, disadvantaged citizens, how they keep themselves, how they give themselves balanced diet, clean drinking water and non-polluted, how they live on non-polluted environment, how they keep their home proper sanitized. If the government will give these facilities to our poor disadvantaged citizens, then disadvantaged citizens or poor peoples can make themselves healthy. If they make themselves healthy, they will not go anywhere for treatment or they will not go to any private hospital, nursing home for treatment. If they will not go to any private hospital, then they make themselves, they make their wealth properly and they make themselves a worthy people and उनको डिजीज नहीं होगा। इसीलिए 1996 में गवर्नमेंट ऑफ केरला, उसका जितना ईयरली बजट है वो टोटल ईयरली बजट से 40% ओनली
दे रहा है पंचायत को फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज। कैसे पंचायत विलेजेस, जो विलेज में जो पीपल रह रहे हैं वो कैसे डाइट फूड पाएंगे, कैसे क्लीन वाटर पाएंगे, उनका एजुकेशन कैसे अच्छा तरह से रहेगा, वोमेन कैसे डेवलप करेंगे। इसके लिए 40% ऑफ बजट एक्सपेंस बाय केरला इन फ्रॉम 1996, by which after expensing these vast amount in in citizens basic amenities, the citizen of rural area make themselves healthy and they improve their health, by which they are not expensing they are not expensing their money in the for illness and diseases. हमारा वर्ल्ड में एक कंट्री है कोस्टारिका, जो कि अपना आर्मी में जितना पैसा खर्च हो रहा था वो उसमें ना खर्च करके उनका जो सिटीजन है उनका डेवलपमेंट के लिए, उनका जो बेसिक नीड्स है उसका डेवलपमेंट करने के लिए वो सारी पैसा वहाँ पर खर्च कर रहा है, जिससे कि वन ऑफ द हेल्थीएस्ट पीपल और हेल्थीएस्ट कंट्री इन आवर कोस्टा रिका इज द हेल्थीएस्ट कंट्री in our world. That's all from the